اس وقت میں ابکری کے تبرکات والے اس سیکشن میں موجود ہوں جہاں پر ایسے تبرکات موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہاں پر تبرکات موجود ہیں۔ ماضی میں اہل معرفت جو گدڑی پہنتے تھے وہ گدڑی موجود ہے، یہاں پر تلواریں موجود ہیں، یہاں پر وہ تلوار موجود ہے کہ جس تلوار کا جو نقشہ ہے جو مشابہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے ساتھ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، غلاف کعبہ، کیا تفصیل ہے وہ ساری آج آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ تلوار ہے ایک بڑے اللہ کے ولی کی، دریائے کنہار سے نکلی زنگ آلودہ۔ یہ قرآن پاک کے پرانے نسخے، یہ کعبہ کا غلاف اور یہ قرآن پاک، یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے صدیوں کلمی مخطوطات ہیں۔ یہ میرے بزرگوں کے تبرکات ہیں جو میرے اولیاء صلحاء ان کے تبرکات ہیں۔ یہ وہ پگ ہے جو میرے سر پہ مرشد نے 91 میں پہنائی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا۔ آج میں آپ کو ابکری کا عجائب گھر دکھاؤں گا اور ابکری کے کچھ ایسے تبرکات دکھاؤں گا جو آپ کو 6000 سال پرانی یعنی کہ ماضی کے جھرونکوں میں جھونک دیں گے۔ اس وقت میں ابکری کے تبرکات والے اس سیکشن میں موجود ہوں جہاں پر ایسے تبرکات موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہاں پر تبرکات موجود ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی جو نشانیاں ہیں، میں اگر ان کی بات کروں تو ان سے جڑے تبرکات موجود ہیں۔ یہاں پر ماضی میں اہل معرفت جو گدڑی پہنتے تھے وہ گدڑی موجود ہے، یہاں پر تلواریں موجود ہیں، یہاں پر وہ تلوار موجود ہے کہ جس تلوار کا جو نقشہ ہے جو مشابہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے ساتھ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، غلاف کعبہ، کیا تفصیل ہے وہ ساری آج آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ حضرت ایک دفعہ پھر وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ جو تبرکات یہاں پر ہیں، یا جس طرح اگر ہم اینٹیک کی بات کریں تو 6000 سال پرانی ماضی کے جھرونکوں میں جھونکنے والے یہ جو پرانی چیزیں کیسے اپنے سینے سے لگائے رکھی ہیں؟ اصل ذوق ہے، پھر ذوق کو اپنی ذات کے لیے نہیں، جی، انسانیت کے لیے۔ میرا موضوع انسانیت ہے، جی، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر رنگ، ہر نسل۔ اب یہ دیکھیے، یہ اصحاب صفا، جی، مسجد نبوی شریف حضور کے ساتھ اصحاب صفا کا چبوترا ہے، یہ سارا قالین ہے اور وہ قالین تبدیل کرتے ہیں۔ وہاں ایک مخلص کے ذریعے، آپ یہ دیکھیں، اس پہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہاں یہ ملا۔ اور یہ سارے باقی غلاف کعبہ ہیں، یہ سب غلاف کعبہ ہیں۔ اچھا، یہ حضور کے روضہ اطہر کے اندر کا غلاف ہے، جالیوں کے اوپر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور یہ حضور کے نالائن مبارک کی کاپی ہے۔ یہ اصلی جھاڑو ہے جو کعبہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ حضور کا بردہ یمانی ایسے تھا۔ اچھا، یہ حضور کے روضہ کے اندر کا غلاف سبز ہے، جی، جی، نشانی یہ ہے وہاں حضور کی مبارک نام اور آیتیں۔ جی، یہ کعبہ کا غلاف ہے اندر کا، یہاں منان، حنان، یا حنان، یا منان، یہ بے بکتن مبارکن وحدن، یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام ترمذی وہاں رشیا کے بارڈر پہ، وہاں ازبکستان میں، وہاں ان کے ایک گدڑی ابا، ایک تسبیح ہے، اور یہ میرے تو آپ کو تحفے میں ملی ہے؟ جی ہاں، یہ تحفے میں ملی اور ہے۔ یہ کہا گیا کہ آپ خود پہنیں؟ جی ہاں، یہ میں نے خود پہنے، گدڑی ہے، یعنی جس دور میں کہتے تھے نا گدڑی کیسی ہے، جسٹ لائک ایسی ہی گدڑی، یہ گدڑی ہوتی تھی، یہ گدڑی ہوتی تھی۔ یہ بھی کعبہ کے اندر کا غلاف ہے۔ یہ میرے بزرگوں کے تبرکات ہیں جو میرے اولیاء صلحاء ان کے تبرکات ہیں۔ یہ وہ پگ ہے جو میرے سر پہ مرشد نے 91 میں پہنائی تھی۔ یہ تلوار ہے ایک بڑے اللہ کے ولی کی، دریائے کنہار سے نکلی زنگ آلودہ۔ یہ قرآن پاک کے پرانے نسخے، یہ کعبہ کا غلاف اور یہ قرآن پاک، یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے صدیوں کلمی مخطوطات ہیں۔ جی، کلمی مخطوطات ہیں۔ غلاف کعبہ ریاض الجنہ کا قالین ہے، اور یہ ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے۔ اور یہ میرے پردادا 1919 پہ جب حج پہ تشریف لے گئے تھے، یہ ان کا قرآن پاک ہے، اور یہ ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے۔ اچھا، یہ ایک میزاب رحمت کے نیچے کعبہ جو ہے اس کے نیچے پوری پٹی ہے، میزاب رحمت کعبہ کا غلاف ہے، اور یہ بھی میرے حضور کی تلوار ایسی تھی۔ اچھا، یہ ایک ممبر ہے، میرے حضور کا ممبر اس درخت سے تھا۔ ساری بابل، نینوا، عراق، کربلا، بغداد اور جو ہے جہاں بصرہ، یہی درخت ہے،
और ये मदीना तक ये दरख्त मौजूद है, और इस दरख्त से ये मिंबर बना था जो मेरे आका पहले खजूर के तने पे तशरीफ़ फरमा होते थे, और उसके बाद ये मिंबर मुझे एक अरब इंजीनियर ने दिया और उसने बाकायदा इसके रेफरेंस दिए हैं। मैं इसकी वजाहत चाहूँगा दोबारा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर बिल्कुल इसी तरह था। बिल्कुल ऐसे था। ये उसके बाकायदा सनदें लिखी हुई हैं, रेफरेंस लिंक्स लिखे हुए हैं, उस दरख्त का पूरा तस्वीर दी हुई है, और ये उन्होंने बना के दिया, एक अरब इंजीनियर ने मदीना मुनव्वरा में मुझे दिया। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा अजायब घर की बात करें, अजायब घर में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हनूत की हुई चीज़ें भी हैं, अपने दौर के वहाँ पर जो जदीद तरीन चीज़ें हैं उस दौर की। हम उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ भी वही ज़ौक़ है मेरा, पुरानी चीज़ों का ज़ौक़ और पुरानी चीज़ों के तस्करे मेरा ज़ौक़ है। वहाँ से हमारी ये जो वॉल सिटी है उसके बड़े बड़े आते हैं, वो कहते हैं कि जितनी चीज़ें आपके पास हैं शायद पूरे मुल्क के अजायब घर म्यूज़ियम में ना हो। मेरा एक ज़ौक़ है 4-5 हज़ार पुरानी से लेकर 60 साल पुरानी चीज़ें। क्या ये जो आपके पास चीज़ें हैं ये एक प्राइवेट आसार कदीमा आप छोड़ के जाना चाहते हैं? इसकी वजह है मेरा ज़ौक़ है, मेरे एक शौक़ है कि मेरे मुल्क का, मेरे वतन का, मेरे देश का विरसा ज़ाय ना हो। जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि ये जो हैं ये तो हज़ारों साल का किस्सा सुनाती हैं? एक अल्लाह के वली थे, उनके पास एक कश्फ का अमल था। वो पुराने बर्तन उठा के बंदे के कान पे लगा देते थे, और बर्तन ऐसे बोलता था जैसे मोबाइल बोलता। मैं वो नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करता। और वो बताता था बर्तन मुझे किसने खाया, बादशाह ने, गरीब ने, फ़कीर ने, अमीर ने, फासिक ने, फाजर ने, गुनाहगार ने, वली ने। ये एक ज़िंदगी है। उस अजायब घर में मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हज़ारों सालों का किस्सा सुनाती हैं? ईंटें हैं, बर्तन हैं, चमड़े के बर्तन, तांबे कांसी के बर्तन, चांदी के, अच्छा सिक्के बहुत पुराने हैं, चीज़ें बहुत पुरानी हैं। आप उसका विज़िट करें कभी, मैं आपको उसके लिए वक्त दूँ, और आप उस अजायब घर को, जिसको मेरा ज़ाती म्यूज़ियम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। तो आप खुद जब वहाँ पर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? मुझे एक महसूस होता है कि मैं 1000 साल पुरानी तारीख में चला गया। वहाँ पर अभी मैं गया तो मुझे तो हर चीज़ के ऊपर यूँ लग रहा था कि इसके ऊपर 100 साल पुराना किस्सा लिखा है, इसके ऊपर 200 साल पुराना किस्सा लिखा है। आप सच कहते हैं, आपकी नज़र ने बहुत अच्छा काम किया। आप 100 साल 200 साल न कहें, हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी वहाँ पड़ी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पुरानी, सिकंदर दौम से पुराने सिक्के, चीज़ें, ईंटें, पत्थर और मॉडल्स, मूर्तियाँ, वो चीज़ें पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें आपको तोहफे में मिली हैं या इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा खर्च। चंद हदिये हैं, मसलन मैं लफ्ज़ चंद हदिये कह रहा हूँ, बाकी तो खर्च ही खर्च है। मसलन कितना खर्च करना पड़ा, महंगी चीज़ कितनी महंगी? मैं एक बात बताऊँ, इश्क का मूल नहीं होता। आय हजरत, इसकी जो साम संभाल है वो बहुत एक आर्ट है, तो कैसे इस सब की साम संभाल कर? इसकी साम संभाल एक पूरा निज़ाम है, एक नज़्म है, एक पूरी टीम है जो इसको संभालती भी है, और इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। म्यूज़ियम की भी और तबर्रुकात की भी, वो बहुत ज़रूरी है। कितने बंदे मामूर हैं इनकी साम संभाल? कम से कम 20-21 अफराद हैं जो इसको संभालते हैं, सुलझाते हैं, दीमक चीज़ों से बचाते हैं। ख़ास किस्म के कोई केमिकल वगैरह भी यूज़? जी, ख़ास किस्म केमिकल यूज़ होते हैं, और दरख्तों के पत्ते जैसे नीम के पत्ते हैं वो खुद हिफाजत है, और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपने अपनी इस मरकज़ के, इस तस्बीह खाना के छुपे हक़ाइक़ हमें दिखा दिए। सरकार अगर आपको कहे कि ये आसार कदीमा आप हमें दे दें, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे और आपके नाम से इसको रखेंगे, तो क्या कहेंगे? उसकी वजह है कि मैं ये खुद सरकार का, ये मेरा सारा निज़ाम मेरे वतन के लिए है, और मैं सरकार का काम मैं कर रहा हूँ। सरकार ने ये मुझे, मेरी हर दुआ में हर बादशाह के लिए दुआ होती है। पहले उसको वज़ीर आज़म और सदर कहते थे, नहीं आज वज़ीर आज़म सदर कहते हैं, पहले बादशाह कहा जाता था। हर आने वाले बादशाह के लिए मैं फ़कीर दुआ करता हूँ। वाह, क्या कहने। आसार कदीमा से मोहब्बत रखने वाले और ऐसे तबरुकात से अकीदत रखने वालों को कोई पैगाम? मैं एक चीज़ चाहूँगा कि चीज़ों की कदरदानी हमारे बड़ों का विरसा था, और छोटी छोटी चीज़ को संभाल के रखते थे, और छोटी छोटी चीज़ को संभाल के और फिर वो काम आते। फारसी का एक मकूला है, दाश्ता कार आयद, इसका माना है बड़ी चीज़ एक वक्त आता है काम आती है। अच्छा, मैं वो छोटी छोटी चीज़ें कहीं से निकालता हूँ, ज़मीन से निकली, कहीं पुराने घरों से निकली, जहाँ से हिफाजत से 16 साल से करते करते आज इतना बड़ा म्यूज़ियम बन गया, और इतना तबरुकात का एक मुबारक हाल बन गया। आपने ये मॉडल देखे? जी बिल्कुल। ये मॉडल तो आपने हमें बताया ही नहीं हजरत। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ,
ये मॉडल देखें, इनके साथ लाइटें लगी हुई हैं। मेरे बड़ों के, मेरे जिनसे मेरे शिजरे हैं, जिन हस्तियों के साथ मेरे रूहानी शिजरे हैं, ये उनके मॉडल्स हैं। हजरत बहावलपुर से बड़ी अकीदत रखते हैं आप, नवाबों की बातें आपसे अक्सर सुनी जाती हैं, वहाँ से भी कोई ऐसी चीज़ है जो अजायब घर में हो? बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखी हैं वहाँ की चीज़ें अजायब घर में इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि बहावलपुर एक पुरानी रियासत है और मालदार 557 स्टेट थी बड़े सगीर की, उनमें सबसे मालदार और बड़ी स्टेट और सखी रियासत और गरीब रियासत यानी वो थी जिन्होंने हिंदुओं को सिक्योरिटी करके भेजा था कि कोई हिंदू कत्ल ना हो। हाय 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 हाय, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हिंदू याद रखते हैं नवाब बहावलपुर सर मोहम्मद सादिक अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह के तस्करे को। वाह, अपनी अपनी अना को भुलाया जा सकता था, शायद कि सारा शहर बचाया जा सकता था। कड़ी धूप में जलने वालों, आओ ज़रा बैठ के सोचें, इस राह में पेड़ लगाया जा सकता था। हज़रत साहब ने ये पेड़ लगाया, ये सूफीज़म का पेड़ है, अल्लाह वालों का पेड़ है, जहाँ पे अल्लाह वाले आके बैठते हैं, तस्बीह खाना है, फैज़ पाते हैं। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।